میری نند کی عمر بہت زائد ہو گئی تھی. وہ مجھ سے 10 سال بڑی تھیں، لیکن میں حیران تھی کہ نند کی شادی کیوں نہیں کروا رہے. شوہر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دادا جی نے منع کیا ہے، اب صرف دادا جی کی خدمت کرتی ہے. ہماری بہن اور نند ہر ٹائم دادا جی کے کمرے میں رہتی تھیں. مجھے عجیب لگتا، رات کو ایک دن اچانک آنکھ کھلی تو دادا جی کے کمرے میں ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں. میں نے میز پر چڑھ کے روشن دان سے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. میری نند دادا جی کے ساتھ. دل میں امنگیں بھرے اور آنکھوں میں بے تحاشا خوبصورت خواب سجائے میں نے عمران کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کیا. عمران بہت اچھے تھے. شادی کے شروع کے دن عمران کے ساتھ میرے بہت حسین گزرے تھے. شادی کے فوراً بعد ہم مری اسلام آباد گھومنے چلے گئے تھے. مجھے واپس آئے ابھی چند ہی دن گزرے تھے جب میری بڑی نند نے مجھ سے کہا کہ کچن کی ذمہ داری اب میں ہی سنبھالوں گی. میں نے کوئی اعتراض نہ کیا. میری نند مجھ سے 10 سال بڑی تھیں، لیکن بہت کم خو اور چپ چاپ سی رہتی تھیں. میرے کسی معاملے میں کچھ نہیں بولتی تھیں. میرے ساس سسر تھے نہیں، بس دادا سسر تھے جنہوں نے میرے شوہر اور نند کی پرورش کی تھی. لیکن جو بات مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ میری نند مجھ سے 10 سال بڑی تھیں، لیکن اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی. یہ نہیں کہ وہ دیکھنے میں پیاری نہیں تھی، خوبصورت نقوش کی مالک تھی، رنگت بھی کھلی کھلی سی تھی. اگر صحیح عمر میں رشتہ دیکھتے تو لوگ یقیناً شادی پر راضی ہو جاتے. مگر بس یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نند کی شادی کیوں نہیں کی گئی. ان کے دادا 70 سال کے لگ بھگ تھے، بہت نرم مزاج کے تھے، دیکھنے میں صحت مند بھی تھے. کچھ بیمار رہتے تھے اس لیے زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہتے تھے. میں نے گھر کا کام سنبھال لیا. گھر میں ہم بس 2 ہی خواتین تھیں. میں بہت باتونی قسم کی تھی، مجھے باتوں کا چسکا سا تھا، اس لیے مجھے تو لگتا تھا نند کے ساتھ میرا اچھا وقت گزر جایا کرے گا. لیکن نہیں، میری نند تو ہر وقت دادا کے کمرے میں رہتی. دادا کا کھانا بھی وہیں بناتی تھی. اس دوا کا خیال رکھنا، ناشتہ دینا سب ان کی ہی ذمہ داری تھی. گھر کے ہر کام کے لیے ملازمہ تھی. کھانا بنانے کے بعد مجھے پورا دن کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا. میرا دل چاہتا تھا کہ نند میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرے، لیکن وہ دادا کے کمرے سے نکلتی ہی نہیں تھی. پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ دادا پوتی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی. پھر میں نے سوچا کہ شاید بڑھاپے میں لوگ بچے سے بن جاتے ہیں، اس لیے دادا اکیلے میں کافی گھبراتے ہوں گے، اس لیے نند ان کے پاس وقت گزارتی ہوگی. پھر میں نے ایک بار یہ بھی سوچا کہ میرا نند اور دادا کیا سوچتے ہوں گے کہ اچھی بہو گھر آئی ہے، بس کچن سنبھالتی ہے اور کمرے میں چلی جاتی ہے، مجھے بھی ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. اس سوچ کے لیے میں نے دادا کے کمرے کا دروازہ کھول دیا. لیکن جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میں شرم سے پانی پانی ہوئی. بے اختیار میں نے جیسے دروازہ کھولا ویسے ہی احتیاط سے بند بھی کر دیا. میں اپنے کمرے میں آ گئی. مجھے اب بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے وہ ان کی پوتی تھی، لیکن ایسے کام کون اپنی پوتیوں سے کرواتا ہے جیسے دادا آپا سے کروا رہے تھے. بے شک دادا ہمارے بزرگوں جیسے تھے، لیکن جو وہ آپا کو کرنے کو کہہ رہے تھے وہ بالکل غیر مناسب سا تھا. مجھے اب تک اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل تھا. میں سوچ چکی تھی کہ عمران سے ضرور بات کروں گی. رات کو مجھ سے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا گیا. میں نے جلدی سے برتن دھوئے اور اپنے کمرے میں چلی گئی. سوچ کے میرا سر پھٹا جا رہا تھا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب اتفاق یہ تھا کہ دونوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا، میری آمد سے بالکل بے خبر تھے. رات کو میں نے اپنے شوہر سے یہ پہلے تو پوچھا کہ آپ لوگوں نے نند کی شادی کیوں نہیں کی، تو وہ کہنے لگے کہ دادا جی نے منع کر دیا تھا، اب وہ صرف دادا جی کی خدمت ہی کرے گی. جیسی خدمت میں دیکھ چکی تھی میں نے اس کا ذکر بھی اپنے شوہر سے کر دیا. میں نے کہا عمران آج جب میں دادا کے کمرے میں گئی تو دادا بنا قمیض پہنے بیٹھے تھے اور نزت آپا ان کے. میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے بری طرح سے ڈانٹ دیا. کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ وہ بوڑھے ہیں، میری بہن ان کی خدمت کرتی ہے اور تم اس قسم کی چھوٹی سوچ رکھتی ہو. خبردار جو دوبارہ ایسا سوچا بھی. میں چپ کی چپ رہ گئی. مجھے اپنے شوہر پر بھی حیرت ہوئی. اگلے روز جب میں کچن میں گئی میری نند دادا کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی. وہی ایک چپ جو کہ ان کے ہونٹوں پر ہر وقت رہتی تھی اب بھی قائم تھی. نہ جانے اسے دیکھ کر مجھے کیوں دکھ سا ہوا. دادا اس عمر میں بھی ہٹے کٹے تھے اور میری نند کے چہرے پر جوانی میں بھی تھکاوٹ سی چھائی رہتی تھی. اور وہ مجھ سے 10 سال بڑی تھیں لیکن اپنی عمر سے کم لگتی تھی. اسمارٹ تھی، خوبصورت تھی. اگر ہلکے رنگ کے لباس پر بڑا سا دوپٹہ نہ لپیٹ کر رکھتی تو اپنی عمر سے کم لگتی. لیکن نہ جانے کیوں وہ ایسی بنی رہتی تھیں جیسے اپنی عمر سے بہت بڑی ہوں. اس بار کچن میں اپنا ناشتہ بناتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ آپا آپ اتنی پیاری ہیں، کچھ شوخ رنگ پہنا کریں، میرے پاس بھی بیٹھ کر باتیں کیا کریں.
हर वक्त दादा के कमरे में रहकर आप बूढ़ी सी लगने लग गई हैं। ना जाने क्यों मैं जानना चाहती थी कि वो क्यों ऐसी हैं, लेकिन मेरी बात सुनकर वो खाली खाली आंखों से मुझे देखने लगी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और दादा का नाश्ता ट्रे में रखकर किचन से निकल गईं। मुझे उनकी चुप अब खुलने लगी थी। वो मुझे यूं इस अंदाज से देखती थी जैसे मैं इस घर में ही नहीं रहती, बस अपने काम से काम रखती थी। अगर कुछ देर मेरे पास बात करने के लिए बैठ भी जाती तो दादा पकाने लगते। वो घबरा कर फौरन से उठकर दादा के कमरे में चली जाती। आधा घंटा भी वो अपनी मर्जी से नहीं बैठ सकती थी। एक बार इमरान मुझे कहने लगे कि खाना मत बनाना, हम बाहर जाकर खाएंगे। अक्सर ही इमरान मुझे होटलिंग करवाने के लिए ले जाते थे। मैं रात को तैयार हो गई। जब इमरान आए तो कहने लगे चलो चलते हैं। मैंने कहा आपा को भी साथ ले जाते हैं, तो वो कहीं भी नहीं जाती। अच्छा है, उनका जी बहल जाएगा। मेरी बात एक आम नोयत की थी। मुझे आपा से बहुत हमदर्दी सी हुई थी। जब से मेरी शादी हुई थी मैंने हमेशा उन्हें घर पर दादा के पास ही देखा था। ना वो कहीं आती थी ना वो कहीं जाती थी, ना कोई दोस्त था ना कोई सहेली थी। लेकिन इमरान तो मुझ पर भड़क से गए। कहने लगे तुमने जाना है तो चलो, वरना घर पर बैठी रहो। तुम क्या हर वक्त आपा आपा करती रहती हो? एक बार की कही बात तुम्हें समझ नहीं आती कि दादा पीछे अकेले रह जाएंगे? उन्हें कौन देखेगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? मुझे इमरान का ऐसा रवैया, वो भी अपनी बड़ी बहन के साथ, बहुत बुरा लगा। न जाने क्यों मुझे ये लग रहा था कि कोई तो बात है। आखिर ऐसा भी क्या है कि इमरान को अपनी सगी बहन से जरा भी लगाव नहीं। वो आपा का नाम सुनकर ही माथे पर तेवरी से चढ़ा लेते थे। मेरी शादी को चंद माह गुजर गए थे, लेकिन मैंने आज तक इमरान को आपा से बात करते नहीं देखा था। बात तो दूर की बात थी, वो आपा को देखते तक नहीं थे। कभी आपा से उनका सामना भी हो जाता तो तनफ्फुर से नजरें बदल जाती, जैसे वो उनकी बहन ना हो, दुश्मन हो। मुझे ना जाने क्यों अपने ही घर में एक कुशीदगी सा एहसास होने लगा। आपा से मैं कुछ भी पूछने की कोशिश करती थी तो वो एक चुप का कुफल अपने मुंह पर बांधे रखती थी, कुछ ना कहती थी। जिस किस्म की खिदमतें वो दादा की कर रही थी वो मेरे शोहर को करनी चाहिए थी, क्योंकि जब वो उनके कमरे में गई थी तो दादा अपना बिना कमीज पहने बैठे थे और मेरी नंद उनकी कमर पर तेल मालिश कर रही थी। मुझे तो देखकर ही शर्म सी आने लगी। इमरान भी तो उनका पोता था, फिर इमरान क्यों नहीं उनकी खिदमत करते थे? एक बार मुझे मैके जाना था। इमरान के पास मुझे मैके छोड़ने जाने वक्त नहीं था। मेरा कोई सगा भाई तो था नहीं, हम बस 3 बहनें थीं। मैं सबसे छोटी थी, बड़ी बहनें शादीशुदा थीं। मेरा कज़न मुझे लेने आ गए। हमारे घर के सामने का घर मेरे ताया का था। आफाक भाई मेरे तायाजाद थे, हमसे काफ़ी बड़े थे, लेकिन अब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। अभी भी बैरून मुल्क से लौटे थे। ताई अम्मा आजकल उनके लिए ही रिश्ते तलाश कर रही थी। आफाक भाई मुझे छोटी बहनों की तरह समझते थे। आफाक भाई जब मुझे लेने मेरे घर आए तो मैंने उन्हें चाय के लिए ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मैंने सोचा क्या कहेंगे, बहन इतनी बेमुरव्वत थी कि चाय तक ना पूछी। मैं चाय बना रही थी। आपा इस बात से अनजान थी कि मेरे कज़न ड्राइंग रूम में है, वरना इमरान के कोई दोस्त या मेहमान उनसे मिलने आते तो मुझे और आपा को ड्राइंग रूम में जाने की बिल्कुल इजाज़त ना थी। बेशक इमरान शहर में रहते थे, लेकिन उनका ताल्लुक गांव से था। सारा बचपन जवानी उन्होंने ज़मींदाराना माहौल में गुजारी थी, लेकिन जब शहर में काम चल पड़ा तो यहीं शिफ्ट हो गए थे। हालांकि मैं उनकी बरादरी से ना थी, लेकिन गैरों के सामने हमें जाने की बिल्कुल भी इजाज़त ना होती थी। लेकिन मुझ पर मेरे मैके की कज़न से मिलने और बात करने पर सख्ती भी नहीं थी। आपा किसी काम से वहाँ गई थी। एन उसी वक्त मैं भी चाय लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। मैंने आपा को देखकर उनका तारुफ आफाक भाई से करवा दिया। वो बस सलाम का जवाब देकर ही वहाँ से चली गई। जब मैं मैके आई तो आफाक भाई मेरी नंद के बारे में पूछने लगे। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि वो गैर शादीशुदा है तो वो खुश हो गए। कहने लगे मेरे लिए रिश्ते की बात करो। ये सुनकर तो मैं खुश हो गई, क्योंकि मैं जब भी अपनी नंद को उदास देखती मेरी ख्वाहिश होती थी कि वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, ज़िंदगी खुशियों से भरपूर गुजारे। मैं भी खुश हो गई। आफाक भाई बहुत अच्छे इंसान थे, आपा को बहुत खुश रखते। मैं तो बड़ी खुशी खुशी वापस आई थी। मैंने सोचा दादा और इमरान से बात करूं, इसलिए मैं इमरान को लेकर दादा के कमरे में ही आ गई। मैंने बस कुछ यूँ शुरू किया कि आपा ने अपनी जवानी भी इस घर की खिदमत में लगा दी है। इस वक्त घर पर कोई और ख़तून नहीं थी जो घर के भाग दौड़ संभाल सकती, लेकिन अब तो मैं मौजूद हूँ, इसलिए हमें आपा की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। फिर मैंने आफाक भाई का जिक्र किया। मुझे तो लगा मेरी बात पर दादा पोता सुनकर खुश हो जाएंगे, लेकिन वो दोनों ही मुझ पर भड़क उठे।
दादा का गुस्से से चेहरे सुर्ख हो गया। कहने लगे कि तुम्हारा कज़न या निज़हत पर अपनी गंदी नज़र रखने आया था। आज के बाद मेरे घर तुम्हारे मेके से कोई कदम नहीं रखेगा। मैं तो हैरत से दादा को देखती रही। एक आम सी सरसरी सी बात को वो कैसा घटिया सा रंग दे रहे थे। इमरान तो मुझे यूं घूर रहे थे कि जैसे वो नज़रों से ही मुझे मार डालेंगे। मुझे उनके गुस्से की वजह समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों अपनी बहन को घर बिठाए रखना चाहते हैं। मैंने कहा कि मेरे कज़न ऐसे नहीं हैं और आपा का क्या कसूर है कि वो सारी ज़िंदगी खुशियों को तरसती रहें। आप लोग क्यों उनके लिए इतने खुदगर्ज होकर सोच रहे हैं। मेरी बात पर एक ज़ोरदार थप्पड़ इमरान ने मेरे मुंह पर मार डाला। मुंह बंद करो अपना, कब से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो के बेलगाम होती जा रही हो। तुम्हें किसने कहा कि आपा के लिए रिश्ता ढूंढती फिरो। आज के बाद आपा के हर मामले से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुर्ख आंखों से इमरान मुझे उंगली उठाकर निहायत गज़बनाक लहजे में वहाँ से उठाकर ले गए। मेरी गाल पर उनकी उंगलियों के निशान छुप गए थे। मैं बड़ी तासुब से उन्हें देख रही थी। मुझे उस थप्पड़ का ज़रा अफसोस ना होता अगर मैं कसूरवार होती, लेकिन ये थप्पड़ मुझे बिला वजह पड़ा था। मैं अपने कमरे में चली गई, अपना बैग अलमारी से निकाला और अपने कपड़े रखे। मैं बिला वजह की मार क्यों खाती रहूं? मर्द अगर औरत पर एक बार हाथ उठा ले तो हमेशा उठाता ही रहता है। अगर आज मैं चुप रही तो इमरान तो बात बात पर मुझ पर हाथ उठाएंगे। मेरा अपने आंसुओं पर ज़ब्त खो सा गया। मैं अपने कपड़े बैग रख रही थी कि इमरान कमरे में बड़े गुस्से से दाखिल हुए। मुझे यूं बैग में कपड़े रखता देखकर मेरे पास आ गए और गुस्से से पूछने लगे कि तुम कहाँ जा रही हो। मैंने कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, आपका घर आपको मुबारक हो। मैंने बेदर्दी से अपने आंसू पोंछे। इमरान कहने लगे कि तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर एक कदम भी तुमने बाहर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं हाथ उठाने का कायल हरगिज़ नहीं हूँ, लेकिन तुम ख्वाह मैं इस औरत की हमदर्द बनना छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी जियो। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपा के चक्कर में पड़ी तो अपना घर भी बर्बाद कर बैठोगी। ये कह वो इमरान कमरे से बाहर निकल गए। मैं सोच में पड़ गई कि इमरान ने मुझे साथी तौर पर कभी कुछ नहीं कहा, ना कोई रोक टोक, ना कभी मेके पर जाने पर पाबंदी लगाई, ना ही काम का कोई ज़्यादा बोझ डाला। अगर मैं आपा की हर बात को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर सोचती तो इमरान ने मुझ पर कोई ज़्यादती नहीं की थी। बस आपा से शायद उन्हें चिढ़ सी थी। जब भी अब्बा का नाम सुनते उनके चेहरे पर गज़ब के तासुरात से उभरने लगते। ना जाने अपनी ही बहन से क्या पुरखाश थी उन्हें। मैंने मैके जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और ख़ुद को आपा के हर मामले से दूर ही रखने में आफियत जानी। लेकिन एक दिन वो हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं एक बार रात के वक्त पानी पीने कमरे में बाहर निकली तो मुझे दादा के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। आपा की आवाज़ सुनकर मैं ठटक सी गई। रात के 3 बज रहे थे। उस वक्त आपा का दादा के कमरे में क्या काम था? मैं अपने कमरे के बजाय दादा के कमरे के पास चली गई। दरवाजे पर कान लगाए ताकि सुन सकूं कि बात क्या हो रही है, लेकिन ये डर था कि कहीं पकड़ी ना जाऊं या इमरान कमरे से बाहर निकल ना आए, वरना तो मेरी शामत आ जाएगी। पहले मैंने सोचा कि वापस अपने कमरे में चली जाती हूँ, मुझे क्या लगे कौन क्या कर रहा है, लेकिन आपा की सिसकियों ने कदमों को रोक दिया। वो उस वक्त दादा के कमरे में क्यों थी, फिर रो क्यों रही थी? आखिर ऐसा क्या भेद था जिससे मैं अनजान थी? आपा कहूँ हर वक्त चुप रहती थी, क्यों दादा के साथ हर वक्त उनके कमरे में रहती थी? मजबूरन ही जाती थी, क्योंकि उनके चेहरे पर हर वक्त बेबसी सी तारी रहती थी, जैसे वो सब कुछ किसी बहुत बड़ी मजबूरी के तहत कर रही थी। और अब क्यों रात के इस पहर रो रही थी? मैंने कान लगाया लेकिन मुझे ठीक से कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मुझे बड़ी मायूसी सी हुई थी, जैसे तजस्सुस सा हो कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। दादा के कमरे की कोई खिड़की लाउंज में नहीं थी, बस एक रोशनदान सा था जो बहुत ऊपर था, जहाँ मेरी रसाई मुमकिन नहीं थी। मैंने लाउंज में दाएं बाएं नजरें घुमाई कि शायद कुछ ऐसा नजर आए जिसके ऊपर चढ़ के मैं रोशनदान के जरिए इसे देख सकूं। मुझे सामने डाइनिंग टेबल के पास एक कुर्सी नजर आई। मैंने वो कुर्सी एहतियात से उठाई और दादा के कमरे के रोशनदान के ऐन नीचे रख दी। उस कुर्सी पर चढ़कर मुझे रोशनदान से देखने में मुश्किल पेश नहीं आ रही थी। मैंने जब रोशनदान के दूसरी जानिब देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी नंद मेरे दादा ससुर के साथ, ये देखकर तो मेरा सर ही चकरा गया था। क्या ये था सब कुछ जो मैं देख रही थी? इससे पहले कि मैं चकरा कर गिर जाती, मैं नीचे उतर गई, कुर्सी को वापस उसकी जगह पर रख दिया और अपने कमरे में चली गई। मेरा सहन बिल्कुल माफ हो चुका था। मेरा दिमाग साई साई कर रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन उस वक्त मैं एक बेजुबान जानवर की मानित थी जो देख तो सकता था लेकिन कर कुछ नहीं सकता था। मेरी आंखों से आंसू जारी होने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी आंखें ये सब देखेंगी। मेरी अना अपने आंसुओं पर इख्तियार था। मेरा अपने आंसुओं पर इख्तियार ना था, ना अपनी कैफियत पर। ना चाहते हुए भी सिसकियों से रोने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर इमरान की आंख खुल गई। मुझे रोता देखकर वो परेशान हो गए। मुझसे रोने की वजह पूछने लगे। मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया।
वहाँ मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे, वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे। आपा भी मुझसे कहने लगे कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम किचन का काम छोड़ दो। मैं उनसे कैसे कहती कि जो आंसू मैं बहा रही हूँ वो आपकी तकलीफ़ का सोच कर बहा रही हूँ। अभी भी इस बात को ही ज़हनी तौर पर समझ नहीं पाई थी। जब एक रात मेरी आंख खुली तो इमरान बराबर में नहीं थे, ना ही कमरे में मौजूद थे। मैं भी कमरे से बाहर निकल गई। इतनी पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इमरान कमरे से बाहर गए हों। बाहर मुझे आपा के कमरे से आपा की और इमरान की बातों की आवाज़ें आने लगीं। मैं परेशान सी होकर रह गई। इमरान के गुस्से से बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। वो आपस से जो कह रहे थे मेरे औसान खता करने के लिए काफ़ी थी। उनकी बातें मुझ पर सारे राज खोल चुकी थीं, लेकिन इन बातों से मैं मुतमहिल नहीं थी, इसलिए चकरा कर वहीं गिर गई। जब मुझे होश आया तो ख़ुद को हॉस्पिटल में पाया। सामने इमरान परेशान खड़े थे। मेरी अम्मी और अब्बू भी मौजूद थे। मैंने कहा कि मुझे इमरान के साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। जो बात मैं जान चुकी थी, मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि इमरान के साथ ज़िंदगी गुजारती। इस दिन वो आपस में कह रहे थे कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। तुम्हारे खुद पर मज़लूमियत और मासूमियत का रूप चढ़ाए सबकी हमदर्दियाँ हासिल करके खुद को मासूम और मज़लूम दिखाने की कोशिश करती हूँ। आपा रोते हुए कह रही थी, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने आपकी बीवी से कभी बात करने की कोशिश नहीं की, ना आपकी ज़िंदगी में मुदाखलत की है। एक कोने में पड़ी हूँ, मुझे वहीं पड़ा रहने दें। वो कहने लगे, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफ़रत है। मुझे बस ये बताओ कि आमना के कज़न से चक्कर था तुम्हारा, क्यों इसने तुम्हारा रिश्ता भेजा? तुम क्यों खुद को मना नहीं करती? क्यों उससे सख्ती से बात नहीं करती? तुम्हारी चुप और मज़लूमियत के दिखावे की कमी की वजह से मुझे आमना से सख्त लहजे में बात करनी पड़ती है, इसलिए वो मुझे और दादा को गलत समझती है। ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे निकाह में रहते हुए तुम्हारी दूसरी शादी नहीं हो सकती। ये वो लफ्ज़ थे जिसने मेरे हवास ही खोल दिए थे। इमरान और आपा बहन भाई नहीं थे, मुझसे झूठ बोला गया था। निज़्ज़त आपा इमरान की पहली बीवी थी। फिर इमरान ने मुझसे झूठ बोलकर शादी क्यों की थी? मेरे तलाक के मुतालबे पर इमरान का एक रंग आकर गुजर गया। वो मेरे करीब आ गए, मुझसे कहने लगे कि आमना मेरी एक बार बात सुन लो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। मैंने कहा कि जब सच बताना चाहिए था तो आपने बताया नहीं। अब मैं सच जान चुकी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मैं अपने मैके वापस आ गई, सारी बात अपने वालिदैन को बता दी। इमरान को खुला का नोटिस भी भेज दिया। वो बार मुझे मनाने के लिए आए, रिपीट वो कई बार मुझे मनाने के लिए आए थे, लेकिन मैंने एक बार भी उनकी बात नहीं सुनी। एक दिन आपा मुझसे मिलने आ गई, न जाने क्यों, लेकिन मैं उन्हें इनकार नहीं कर पाई थी। उनकी मुतवरम आंखें मेरे दिल पर आज भी छुरियाँ चला गईं, लेकिन शायद इमरान ने ही उन्हें यहाँ आने पर मजबूर किया होगा। वो मेरी सौकन थी, लेकिन मुझे उससे नफरत ना थी, ना ही जालिसी थी। उनके चेहरे को देखकर बस मुझे तरस आता था। वो मेरे सामने मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठी थी। कहने लगी कि आमना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी, अगर हो सके तो मेरी बात का एतबार कर लेना। हमारे यहाँ औरत की शादी कभी गैर बरादरी में नहीं की जाती, इसलिए मेरी शादी ज़बरदस्ती इमरान से कर दी गई। वो मुझसे 7 साल छोटा था और शादी पर रज़ामंद भी न था। इमरान के दादा मेरे नाना लगते हैं। मेरी वालिदा मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। मैं नाना के पास ही रहती थी। इमरान मुझे आपा कहकर ही पुकारता था, मेरी इज्जत भी बहुत करता था। मैंने भी उसे छोटे भाई जैसा ही समझा था, लेकिन पंचायत ने हमें एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया कि हम एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला सकते। मेरे सिर्फ नाम के साथ इमरान का नाम जुड़ा है, इसके अलावा हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। इमरान ने मुझे पहली रात कह दिया था कि ये ज़बरदस्ती का रिश्ता है, वो मुझे कभी भी बीवी की हैसियत नहीं दे सकता। मैं चुप थी क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद नाना ने इमरान से बहुत झगड़ा किया। वो मुझे मेरा हक दे। इमरान को लगा कि मैं ऐसा चाहती हूँ, इसलिए मुझसे नफरत करने लगा। आए दिन उसके नाना के साथ झगड़े होने लगे। मजबूरन वो मुझे अपने कमरे में आने से नहीं रोकता था, लेकिन मेरी तरफ देखता तक नहीं था। फिर ऐसा हुआ कि वो शहर में रहने लगे। 2 साल वो वापस गांव ही नहीं आया, तो नाना मुझे शहर ले आए। यहाँ आकर इमरान ने नाना से साफ कह दिया कि वो दूसरी शादी ज़रूर करेगा, वो और अपनी बीवी को मेरे रिश्ते के बारे में नहीं बताएगा। अगर नाना ने उसके साथ झगड़ा किया तो वो मुझे तलाक दे देगा। इसलिए तुमसे शादी के दौरान उसने मेरा तारुफ अपनी आपा का करवा दिया। मेरे नाना मुझे बेटियों की तरह चाहते थे, इसलिए वो ज़्यादा वक्त उनके साथ ही गुजारती थी। जिस दिन तुमने दरवाज़ा खोल कर देखा, मुझे पता लग गया था कि तुम हो। नाना की कमर पर एक फोड़ा सा बना था, उसी पर दवा लगा रही थी। मुझे तुम्हारी बातों से अंदाज़ा था कि तुम शायद किसी गलतफहमी का शिकार हो, लेकिन इमरान ने मुझे सख्ती से तुमसे बात करने से मना किया था। इसलिए मैंने तुमसे पीछा छुड़ाने के खातिर ज़्यादातर वक्त नाना के साथ गुजारती थी। जब तुम्हारे कज़न का रिश्ता मेरे लिए आया तो इमरान को ये लगा कि मैंने तुमसे कहा है, या तुम्हारे कज़न से मैंने जानबूझकर मरासिम बढ़ाए हैं।
تاکہ عمران اور تمہاری زندگی میں تلخیاں پیدا کر سکوں۔ ایک رات میں دل برداشتہ سی ہو کر نانا کے پاس آ گئی تھی۔ ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر کہنے لگی کہ عمران سے کہیں کہ مجھے طلاق دے دے، ورنہ اسے ہر وقت یہی لگتا رہے گا کہ میں اس کا گھر توڑنا چاہتی ہوں۔ میں ہاتھ جوڑے رو رہی تھی۔ نانا نے مجھے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ بھی رو رہے تھے کہ جب میری نظر روشن دان پر پڑی تھی تو مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی کہ تم کیوں کسی چوروں کی طرح سے دیکھ رہی ہو۔ عمران کو جب نانا نے مجھے طلاق دینے کو کہا تو وہ حد سے اکھڑ گئے۔ اسے لگا کہ میں طلاق تمہارے کزن سے شادی کرنے کے لیے لینا چاہتی ہوں، اس لیے اس رات مجھ سے یہی بات کر رہا تھا جو تم نے سن لی تھی۔ آمنہ میں کبھی تمہاری اور عمران کی زندگی میں دخل نہیں دوں گی، لیکن خدارا واپس چلو۔ وہ مجھ سے نہیں تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے بغیر نہیں رہنا چاہتا۔ معاف کر دو اسے۔ میں خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی، بنا کسی اعتراض کے آپا کے ساتھ واپس بھی چلی گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر عمران خوش ہو گئے تھے، مجھ سے رات کو تنہائی میں معافی بھی مانگنے لگے، لیکن میں نے ان کے ساتھ رہنے کی ایک ہی شرط رکھی تھی کہ یا تو آپا کو ان کا حق دیں اور ایسے ہی ان کے ساتھ رہیں جیسے رہنے کا حق ہے، یا پھر انہیں آزاد کر دیں، وہ جس سے چاہیں شادی کر لیں۔ ہماری شادی کو 4 سال بیت چکے ہیں اور میں آپا آپس میں بہنوں کی طرح رہتی ہیں۔ نہ وہ کبھی میری سوتن بنی، نہ ہی کبھی وہ میری سوتن بنی، اور نہ ہی میں نے عمران کو کبھی ان کے ساتھ حق تلفی کرنے دی، کیونکہ خوشیوں پر ان کا بھی حق ہے۔ تو ویورز، یہ آج کی کہانی تھی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ بہت شکریہ۔